So hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss chemical properties of alkyl halides, haloarenes and haloalkanes and haloarenes unit for organic chemistry. So let us start. So first one is reactivity of alkyl halides. So weaker is the carbon halogen bond, greater is the reactivity of corresponding haloalkanes. So reactivity depends on the nature of bond. So thus reactivity of alkyl halides decreases in the order. So most reactive is alkyl iodide, then alkyl bromide, then alkyl chloride, and less reactive is alkyl fluoride. Now reason, so we know that ki carbon halogen bonds in alkyl halides are polar in nature. So no doubt halogens are more electronegative than partially negatively charged, partially positive charge. This is known as polarity या polar in nature. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसलिए इनका मल्टी पॉइंट वाले पॉइंट भी ज़्यादा होता है करस्पॉन्डिंग एल्केन से. ठीक है, अब इस बॉन्ड की पोलैरिटी जितना ज़्यादा होगा, अब इसलिए उसको तोड़ने के लिए हमें मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी. ठीक है, सो नो डाउट आयोडाइन इज द लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, fluoride is the most electronegative. Since electronegativity decreases from down the group, fluorine, chlorine, bromine, iodine, ये ऊपर से नीचे घटेगा. Down the group, when we move from top to bottom in a group, electronegativity decreases. ठीक है, तो पोलैरिटी सबसे कम किसका होगा, आयोडाइड का होगा. सबसे ज़्यादा पोलर किस में होगा, फ्लोराइड में होगा, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है. सबसे स्मॉल साइज किसका है, स्मॉलेस्ट इन साइज दैट इज फ्लोरीन, और आयोडीन जो होता है वो सबसे बिगेस्ट होता है. इसका एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है. ठीक है, नाउ इन जनरल द केमिकल रिएक्शन ऑफ haloalkanes कैन बी क्लासिफाइड इनटू नंबर 1 रिडक्शन, नंबर 2 ऑक्सीडेशन, नंबर 3 रिएक्शन विद मेटल्स, नंबर 4 एलिमिनेशन रिएक्शन which is commonly known as dehydrohalogenation, and the fifth one is nucleophilic substitution reactions. So this one is most important for alkyl halide chapter. So further it is classified into two categories, that is SN1 and SN2. Okay, so we will discuss later. Clear? Now first one is reduction. So reduction कहते ही दिमाग में क्या आता है, addition of hydrogen. So in organic chemistry, reduction means what? Addition of hydrogen or removal of oxygen, या you may say most electronegative atom like halogen. ठीक है, जहां भी रिडक्शन वर्ड आएगा इसका मतलब है कि हमें या तो हाइड्रोजन ऐड करनी है या हमें ऑक्सीजन रिमूव करना है, या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक halogens. So haloalkanes and haloarenes can be reduced to aliphatic and aromatic hydrocarbons respectively by using the following reducing agents. Reducing agent मतलब agent वे होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं. ठीक है, reducing agent मतलब जो दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और सेल्फ को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो हाइड्रोजन H2 in presence of PD, PT, nickel, ZnHCl metal in presence of acid which is more electronegative and which is above the hydrogenic electrochemical series, SnHCl, red phosphorus in presence of Hi और lithium aluminum nitrate. ठीक है, तो किसी एल्किल हाइड्राइड को लिख दिया RX, SnHCl lithium aluminum hydride और सोडियम in presence of इथेनॉल, तो भी यहाँ से क्या मिलेगा, RH. मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह पे हमने यहाँ से हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो ये बन गया एल्केन. ठीक है, ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए इसी को एग्जांपल लिखें. अब हमें यहाँ पे दे देगा जैसे सपोज CH3 CH2Cl. ठीक है, यहाँ हमें लिख देगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल PT. ठीक है, जनरली टेम्परेचर यहाँ में आता है 473 to 523 केल्विन. बोलिए क्या बनाएंगे, तो हमने क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पे हाइड्रोजन डाल देना है. नंबर ऑफ कार्बन जैसे यहाँ में वैसे सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. तो हाइड्रोजन हटा दीजिए और उसकी जगह पे हाइड्रोजन डाल दीजिए. अब R की जगह पे क्या है, CH3 CH2H,
no problem, we can write it CH3 which is known as ethane, और जो हाइड्रोजन निकला वो कहाँ जाएगा HCl। ठीक है, चलिए सेम अगर ये मान लीजिए कोई हेलो एरिन्स लिख दे, मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन लाइक दैट, तो क्लोरोबेंजीन, यहाँ में क्या लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब आपसे पूछा जाए क्या बनाएंगे, तो बोलिए क्लोरीन हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, मतलब ये क्या बन जाएगा, बेंजीन, और ये था क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो जस्ट रिवर्स रिएक्शन है, किसी एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना है तो रिडक्शन, और किसी एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना है तो हैलोजिनेशन। ठीक है, क्लियर। चलिए सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कहते हैं दिमाग में क्या आता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन इज नोन एज process in which oxygen is added or removal of hydrogen or increase in oxidation state, ठीक है, या losing of electrons। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ये दो कॉन्सेप्ट है, या तो हाइड्रोजन ऐड होगी, या कभी कभी आपको हैलोजन का भी एडिशन होता है तो वो भी ऑक्सीडेशन है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगी। So only primary and secondary alkyl halides, only primary and secondary alkyl halides undergo oxidation in presence of dimethyl sulfoxide, which is commonly written as DMSO, or reaction with CH2 whole 6 and 4, followed by hydrolysis, then hydrolysis कराएंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं हेक्सा, CH2 is known as methyline, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, तो 6 है इसलिए इसका नाम हो गया हेक्सा। CH2 is known as methylene, N4 का मतलब हो गया टेट्रा एमीन, तो कॉमनली इट इज नोन एज हेक्सामेथाइलिन टेट्रामीन, और कमर्शियली इट इज नोन एज यूरोट्रोपिन। ठीक है, देन इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो सिर्फ 1 डिग्री और सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी 1 डिग्री और 2 डिग्री ये रिएक्शन देगा, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। 3 डिग्री अल्किल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। नाउ अब प्राइमरी ऑक्सीडाइज होगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड दैट इज RCH2X yield aldehyde, whereas secondary alkyl halides give ketone as a major product। ठीक है, तो चलिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर हम यहाँ ले लें, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को क्या लिखते हैं, RCH2X। अब यहाँ में क्या लिखा रहेगा, DMSO और CH2 whole 6 and 4 followed by hydrolysis, water in presence of H plus। ठीक है, तो DMSO के साथ जब ये आएगा या CH2 और 6 N4 आएगा तो हमें क्या करना है, बोलिए इसकी जगह पे बना देना है एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, सो 1 डिग्री और प्राइमरी आएगा तो एल्डिहाइड। अगर कीटोन लेंगे, सॉरी 2 डिग्री लेंगे तब क्या बनेगा, यहाँ में आएगा एल्किल हैलाइड, इसको हमने क्या पढ़ा है 2 डिग्री और सेकेंडरी, इसको सेम वही चीज DMSO या CH2 और 6 N4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बोलिए अगर 2 डिग्री लेंगे तो ये क्या बनेगा, कीटोन, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन में भी ये हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मिलता है। ठीक है, क्लियर। इसलिए अब अगर आपसे पूछे कि इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, तो पहले तो इसका नाम हमें सोचना है कि इसको क्या लिखते हैं। यहाँ में क्या आएगा, CH2 का होल 6 and 4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले इसको क्या बोलते हैं, तो देखिए कई बार हम पढ़ चुके हैं कि ये बेंजीन C6H5CH2, दिस इज नोन एज बेंजाइल, एंड देन Cl लगा है तो क्लोराइड, OH आएगा तो अल्कोहल, NH2 आएगा तो अमीन, ये बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड का ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड in presence of hexamethylene tetraamine followed by हाइड्रोलिसिस yield, बोलिए क्या बनाएंगे,
तो 1 डिग्री है CH2Cl, तो 1 डिग्री है तो इसकी जगह पे क्या आएगा CHO। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। ठीक है, सो 1 डिग्री प्राइमरी आएगा तो ये बनाएगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री होगा तो वो बनाएगा कीटोन। ठीक है, चलिए अब इसमें ये कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ alkyl halide by DMSO is known as Swan reaction। इसको बोलते हैं स्वान रिएक्शन। ठीक है, सो एल्किल हैलाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे DMSO से, इस रिएक्शन का नाम है स्वान रिएक्शन। ठीक है, while oxidation of benzyl chloride by using CH2 hexamethylene tetraamine, so this reaction is known as Somlet aldehyde synthesis। इसको बोलते हैं Somlet aldehyde synthesis। तो इस रिएक्शन का नाम है Somlet, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल हैलाइड्स with या using hexamethylene tetraamine is known as Somlet SOMMLET Somlet aldehyde synthesis। ठीक है, सो सिंपली ऑक्सीडेशन में क्या करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड आएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब किसके प्रेजेंस में होगा, कब हम समझेंगे कि इसको ऑक्सीडाइज करना है। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ रिएजेंट क्या करना है और कब करना है। तो DMSO या आपको हेक्सामेथाइलेट टेट्राएमीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब बनेगा क्या, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर लिखा है तो उसकी जगह पे एल्डिहाइड, अगर 2 डिग्री है तो इसकी जगह पे कीटोन, 3 डिग्री तो आएगा ही नहीं। तो RCH2X एल्किल हैलाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं DMSO से, तो इस रिएक्शन का नाम है स्वान रिएक्शन। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वान रिएक्शन। while oxidation of benzyl halides by hexamethylene tetraamine is known as Somlet aldehyde synthesis। तो इस रिएक्शन का नाम है Somlet aldehyde synthesis। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये सेकंड था ऑक्सीडेशन, ये हमें एल्डिहाइड और कीटोन में भी मिलेगा। थर्ड वन इज रिएक्शन विद मेटल्स। तो किसी एल्किल हैलाइड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ये क्या है भाई, तो देखिए ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, और मेटेलिक का मतलब है मेटल। So compounds in which metal is directly bonded to carbon। ठीक है, तो जिसमें मेटल कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड होगा तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक एक अलग ही इसको ब्रॉड चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का, बट यहाँ में कुछ ऐसे नाम है जो हमें ऑर्गेनोमेटेलिक मिलते हैं। तो डिटेल्स हम इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे सबसे बड़ा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे तो हम लोग का हीमोग्लोबिन है, जिसमें क्या होता है आयरन, क्लोरोफिल उसमें क्या होता है मैग्नीशियम। ठीक है, सो कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सो व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, alkyl magnesium halide is formed which is known as Grignard reagent। So this one is the most important reagent for synthetic application। ठीक है, चाहे हम क्लास 12 स्टूडेंट है, चाहे BSc स्टूडेंट है या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इस रिएजेंट को हम नहीं भूल सकते। ठीक है, तो चलिए इसको रिएक्शन फॉर्मेट में लिखिए। तो एल्किल हैलाइड को हम क्या लिखेंगे RX, रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए हमें क्या करना है, बस इसको उठा के यहाँ में इंसर्ट कर दीजिए, ये मेटल जो होगा वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RMgX। अब इसी को बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दिस इज नोन एज ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज कॉमनली रिटेड एज RMgX। ठीक है, चलिए अब सेम यही चीज आ भी है। देखिए अगर यही मान लीजिए यही एल्किल हैलाइड को अगर हम जिंक के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, भाई ये भी तो मेटल है, तब क्या बनेगा, जिंक इज डाइवैलेंट, इससे यहाँ से RZN
आर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आर जेड एन आर। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ में 2 लेना पड़ेगा प्लस x2। उसी तरह एल्किल हैलाइड में लिथियम के साथ भी रिएक्ट करता है। यहाँ से क्या बनाएगा आर एल आई प्लस एल आई एक्स, ठीक है। नो डाउट ये सब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। लेड के साथ भी रिएक्ट करके R4Pb बनाता है, R4Pb बनाता है, ठीक है। तो टेट्रा एल्काइल लेड, तो इन जनरल इनको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए अगर ये मान लीजिए हमें एरोमेटिक आ गया, तब क्या करेंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ में देगा, हाँ इसमें रिफ्लेक्स भी करते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब लगभग 6-7 घंटे इसको गर्म करते हैं। यहाँ में आपको लिख देगा मैग्नीशियम। अब यहाँ में टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन यूज करते हैं क्योंकि हमने एक एल्किल हैलाइड में यहाँ पे क्या है, तो ये बॉन्ड जो होता है सम पार्शियल कैरेक्टर, तो रिएक्टिविटी थोड़ी इसकी कम होती है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन रिफ्लक्स तो हमें करना ही है, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी है उसको इस बॉन्ड के बीच में डाल दीजिए। ये बन जाएगा MgCl और यहाँ से आ जाएगा फिनाइल। अब इसका कॉमन नेम हम क्या लिखेंगे, तो फिनाइल मैग्नीशियम और क्लोरीन है तो क्लोराइड, ठीक है। सो रिएक्शन विद मेटल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है। तो Mg मैग्नीशियम ड्राई ईथर एंड देन रिफ्लक्स, तो ये बन जाएगा RMgX। RMgX कॉमनली नोन एज ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, जिसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस लगभग हमें हर चैप्टर में मिलेगा। आप एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, यहाँ से इसका मेथड प्रिपरेशन है। इस ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का एप्लीकेशन जो आएगा अल्कोहल से आएगा, एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, एमीन में आएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसका सिंथेटिक एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है जो अक्सर हमसे पूछता है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को हमें एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों बनाते हैं, ठीक है, ड्राई ईथर क्यों लिखते हैं यहाँ पे। So it should be noted that Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition, without water. Since Grignard reagents are highly reactive and react with any source of proton to form hydrocarbon. अगर थोड़ा भी इसको मॉइस्चर मिलेगा या कहीं से भी इसको हाइड्रोजन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, ठीक है, तो ये फिर वापस हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, हमें इसको एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनाते हैं, ड्राई ईथर ही लेते हैं। यदि अब RMgX है, इसको अगर कहीं से मॉइस्चर मिलेगा, मतलब वाटर, वाटर मतलब HOH, तो ये वापस फिर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड MgXOH यहाँ से निकल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MgXOH, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है, हमसे रीजन पूछता है इसको मैग्नीशियम in presence of dry ether ही क्यों लेते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, क्योंकि इसको थोड़ा भी मॉइस्चर मिलेगा तो इस तुरंत ये हाईली रिएक्टिव है, उससे रिएक्ट करके और ये हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हमें एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। चलिए अब रिएक्टिविटी की बात करें फॉर एल्काइल हैलाइड्स, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज एज यूजुअल, अभी जो पीछे मैंने डिस्कस किया था, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड, क्योंकि जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा या बॉन्ड जितना फिशाइल होगा, मतलब आसानी से रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो जो भी मेटल है वो आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी सबसे मोस्ट रिएक्टिव एल्किल हैलाइड जो किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड इज इट इज आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड, ठीक है। क्योंकि इसकी साइज सबसे छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, तो ये जल्दी मेटल को यहाँ में थोड़ा डिफिकल्टी होगी, उतना जल्दी रिएक्टिव नहीं होगा जितना आयोडाइड होगा, ठीक है। तो पार्टिकुलर मेटेरियल की बात करें तो एल्किल हैलाइड के लिए ये ऑर्डर हो गया आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। चलिए अगर मान लीजिए रिएक्टिविटी ऑफ ए मेटल की बात करें, तो रिएक्टिविटी ऑफ ए मेटल विद एन एल्किल हैलाइड डिपेंड्स ऑन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज द मोर इजीली ए मेटल इज रिड्यूस्ड द मोर रिएक्टिव इट इज। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जितनी आसानी से वो मेटल रिड्यूस होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है।
क्योंकि मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वहाँ वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम जिसको बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो मेटल जितना ऊपर है, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना निगेटिव है, ठीक है, वो ऊपर है, और जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे नीचे आएंगे उसकी रिएक्टिविटी घटेगी, ठीक है। सो मेटल्स के लिए हम क्या देखना है कि जिसकी जो जितना आसानी से रेड्यूस होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो डिपेंड करेगा उसके रिडक्शन पोटेंशियल पे, ठीक है। चलिए, नाउ कपलिंग रिएक्शन। सो रिएक्शन विद मेटल्स में ही आएगा ये कपलिंग रिएक्शंस कह सकते हैं इसको हम। ऊर्ज रिएक्शन, एल्किल हैलाइड चैप्टर की बात करें और ऊर्ज रिएक्शन की बात ना हो, ये तो नाइंसाफी है। Alkyl halides when treated with sodium metal in presence of dry ether, hydrocarbons are formed, and this reaction is used to increase the number of carbon. तो इसको हम कह सकते हैं ascending of the series, ठीक है। So alkyl halide when treated with sodium metal in presence of dry ether, तो हमें क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। चलिए, इसको अगर हम रिएक्शन फॉर्मेट में लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए एल्किल हैलाइड मतलब यहाँ में क्या आएगा, आर, बोलिए आर एक्स, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल दैट इज फिक्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जहां भी आपको ये दिखाई दिया सोडियम और एल्किल हैलाइड, तो बस समझ जाना है कि एक ही रिएक्शन है, वो है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बनता क्या है, आर आर प्लस NaX, बैलेंस करने के लिए यहाँ में 2। ठीक, अब इस रिएक्शन का टिप्स कि हमें करना क्या है, देखिए आपको यहाँ पे इसका हम टिप्स बताते हैं। सीधा सीधा देखिए, जो भी एल्किल हैलाइड लिखा है उसको आप एक बार ऐसे लिखिए, बीच में सोडियम डाल दीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए। वट एवर द नंबर ऑफ कार्बन, क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ड्राई ईथर, ठीक है। तो एक बार आपको सीधा लिखना है RX, एक बार उसको उल्टा कर देना है, जस्ट हेलोजन को पहले और एल्किल पार्ट को पीछे। ठीक, अब यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, इसको यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। अभी एक सोडियम एक हेलोजन के साथ जाएगा, क्योंकि ये यूनिवैलेंट है इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा 2NaX, और ये दोनों R R आपस में जुड़ गया, तो बनना तो हाइड्रोकार्बन ही है नो डाउट, बट इसमें इंपॉर्टेंट इसका वही अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएगा जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑफ द सीरीज। तो अगर जहां में हमें नंबर ऑफ कार्बन को ऑलमोस्ट डबल करना है तो हमें सिर्फ ऊर्ज रिएक्शन के बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए, अब हमसे क्या है, एग्जांपल पूछेगा, चलिए अब यही चीज सीधा सीधा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड से आपसे कहेगा ईथेन बना दो, तो नो प्रॉब्लम, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन पूछेगा तो रख दीजिए, लिख दीजिए। तो देखिए हमें क्या करना है, CH3Cl एक बार सीधा दिया, बीच में सोडियम डाला, फिर इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करने का मतलब क्लोरीन को पहले लिखेंगे और यहाँ से आप आंख बंद करके डिलीट कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये बनेगा CH3 ठीक है। इसका नाम हो गया, मतलब किसके साथ, ड्राई ईथर, अब ये बन गया ईथेन, ठीक है, क्लियर। तो जहां नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है हमें ऊर्ज रिएक्शन। चलिए, अगर ये मान लीजिए हमें ऐसे लिख दे, चलिए तो इसका प्रोडक्ट बना दीजिए CH3CH, यहाँ चेंज कर देता हूँ BrCH3, यहाँ में आपको देगा सोडियम ड्राई ईथर, बोलिए क्या बनाएंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। मैंने आपको क्या बोला, RX, तो R की जगह पे क्या है CH3CH, X की जगह पे क्या है, हाइड्रोजन की जगह पे क्या है Br, तो नो प्रॉब्लम, हमें क्या करना है, एक बार सीधा लेना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस CH3 को नीचे लिख दिया, बीच में क्या डालना है, सोडियम डालना है, फिर इसी को उल्टा कर देना है, उल्टा करने का मतलब हैलोजन वाले पार्ट को पहले लिख दिया, अब ये किससे जुड़ा है, CH से, और ये CH किससे जुड़ा है, फिर CH3, और एक यहाँ में CH3, ठीक है। अब इन दोनों को आप यहाँ से आंख बंद करके डिलीट कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा CH3CH, ये हो गया
CH3। देखिए ये दोनों आपस में जुड़ गया, क्योंकि हमें उल्टा क्वेश्चन भी पूछता है। CH3 CH3, ठीक है, प्लस 2Na Br, ब्रोमीन है तो Br, Cl है तो Cr। अब इसका नाम क्या लिखेंगे बोले, तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से सेम है, नो प्रॉब्लम। 2 पे क्या हो गया मिथाइल, 3 पे क्या हो गया मिथाइल, इसलिए क्या लिखेंगे 2, 3, 2 बार है तो डाई क्या है मिथाइल। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है 4 कार्बन, मतलब ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अभी हमें वर्ड में लिख देगा तो देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे आइसोप्रोपाइल या 2 ब्रोमो propane, isopropyl bromide. Yeah, what happens when 2-bromopropane is heated with sodium in presence of dry ether? तो सोडियम ड्राई ईथर मतलब वुड्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए अगर यही मान लीजिए हमें इसी को चेंज करके, इसी को चेंज करके अगर हमको मान लीजिए ऐसे लिख दिया, तो यहाँ में आपको दे देगा CH3, फिर इसके नीचे दे देगा CH3, ये भी दे देगा CH3, यहाँ में CrBr, जो भी है सोडियम ड्राई ईथर। तो अब क्या बनाएंगे, तो हमने क्या बोला आपको, बस जो एल्किल हैलाइड है उसको एक बार सीधा लिखिए, एक बार उल्टा लिखिए, आंख बंद करके निकाल के दोनों को एज इट इज जोड़ दीजिए। तो एक बार सीधा, तो यहाँ से क्या लेंगे CH3, इसका नाम क्या है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन, प्लस देखिए इसी को उल्टा का मतलब ये जस्ट ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, ब्रोमीन पहले आ गया, बाकी 3 यहाँ में है, हमें क्या करना है यहाँ से NaBr निकाल देना है, निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो देखिए इस कार्बन से क्या है 3 मिथाइल आ गया, ये आपस में जुड़ गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन कार्बन, प्लस CH3 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 CH3। अब इसका नाम क्या लिखेंगे 1 2 3 4, तो 2 2 3 3, कितने आ गए 4, मतलब टेट्रा आया क्या मीथाइल, कितने कार्बन ब्यूटेन। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेंगे, क्लोराइड लेंगे, टर्सरी लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ये उर्ज रिएक्शन, सोडियम ड्राई ईथर के साथ आएगा तो उर्ज रिएक्शन कन्वर्जन पूछेगा, जहां नंबर ऑफ कार्बन डबल करना है तो उर्ज रिएक्शन, ठीक है। चलिए नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर असेंडिंग दिस सीरीज, जहां में नंबर ऑफ कार्बन हमें क्या करना है बढ़ाना है, विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये अभी हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है। तो क्लोरोमीथेन से कहेगा इथेन बनाओ, ठीक है, इथेन 2 कार्बन से कितना बनेगा 4 कार्बन ब्यूटेन, तो फिर हम वहां पे, ठीक है, 3 कार्बन से क्या बनेगा प्रोपेन से नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है उर्ज रिएक्शन का। हाउएवर इट हैज सम सर्टेन लिमिटेशंस, सो लिमिटेशंस ऑफ उर्ज रिएक्शन, तो ये बीएससी वालों को पूछता है, ये क्वेश्चन हमको मिलता है। चलिए उर्ज रिएक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स कॉन्टेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। इससे हमें, क्योंकि रिएक्शन में आप देखें तो एक R है X है, यहाँ से जब हम सोडियम ड्राई ईथर के साथ अगर इसको यूज करते हैं तो ये क्या बना रहा है R, मतलब क्या दिखाई दे रहा है कि जितने R है ना वो जस्ट डबल हो जा रहा है। तो अगर हम इधर 1 कार्बन लेंगे तो इधर में क्या मिलेगा 2 कार्बन, इधर में 2 कार्बन लेंगे तो क्या मिलेगा 4 कार्बन, इधर में 3 कार्बन लेंगे तो क्या मिलेगा 6 कार्बन इधर, ठीक है। तो इससे हम इथेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, हेक्सेन बना सकते हैं, बट आपसे कहा जाए प्रोपेन बनाइए, तो प्रोपेन बनाने का मतलब 3 कार्बन के लिए हमें इधर में 1.5 कार्बन लेना पड़ेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, इससे हम मीथेन नहीं बना सकते, ठीक है। Alkyl halides containing other functional groups like OH or COH groups cannot be used in wood reaction. तो ये लिमिटेशन सोड रिएक्शन का है कि दिस हमको सिर्फ दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंथेसिस ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स,
ठीक है, वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन नहीं। Alkyl halides containing other functional groups like OH and COH groups, it cannot be used in wood reaction. wood reaction में उसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब इसी में फिटिंग साहब ने इसमें एक ऐड कर दिया। तो वुड्स ने क्या किया था, दोनों एल्काइल लिया था, फिटिंग ने कहा चलो एक एरोमेटिक डाल देते हैं। So when an ethereal solution of an aryl halide is warmed with an alkyl halide, तो कॉम्बिनेशन हो गया एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड्स का। बाकी कंडीशन सेम है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इथेरियल सॉल्यूशन मतलब ड्राई ईथर, एल्काइल बेंजीन इज द मेजर प्रोडक्ट। चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यदि हमारा फंडा वही रहेगा। तो ये था एल्काइल हैलाइड का पहला पार्ट, एराइल हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देगा, चलिए आर एक्स, और यहाँ में सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सोडियम आते ही समझ जाना है कि वुड्स रिएक्शन। तो बनेगा क्या, तब अब बस कंडीशन ये है कि एक आर की जगह पे बेंजीन रिंग आ गया और दूसरा आर तो रहेगा ही, इसलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे एल्काइल बेंजीन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज, बाकी तो वही है 2Na ही बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब इसका कन्वर्जन के लिए हमें सोचना है। तो अब हमसे कहेगा क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन बना दो, ब्रोमोबेंजीन से इथाइल बेंजीन बना दो, टॉल्यूइन बनाना है। टॉल्यूइन का मतलब यहाँ में क्या आएगा, CH3, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। क्योंकि रिएक्शन तो फिर भी हम कर लेते हैं, बट जब कन्वर्जन आता है तब हम फंस जाते हैं, तब एट ए टाइम सोच नहीं पाते हैं, इसलिए हमें कन्वर्जन के लिए अपने को प्रिपेयर करना है। क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन कहेगा तो क्या दिखाई दे रहा है, देखिए हमें क्लोरीन हटाना है और क्या डालना है, CH3। तो किसी एराइल हैलाइड में अब R की जगह पे क्या लेंगे, एक कार्बन चाहिए, तो CH3 ले लिया, Cl ले लिया। अब यहाँ में क्या लिख देंगे, सोडियम डाई ईथर, और इसको लिख देंगे कि दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। चलिए करना क्या है, वही करना है जो पीछे किया, वुड्स में निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया। वैसे इसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, नो डाउट, बट कमर्शियली इट इज नोन एज टॉल्यूइन। हमें मोस्टली तो टॉल्यूइन ही पूछेगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को बदल दे, अब आपसे कहेगा कि ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए और इथाइल बेंजीन बना दीजिए। तो यहाँ में आएगा ब्रोमोबेंजीन, और इथाइल का मतलब क्या हो गया, C2H5, बेंजीन का मतलब हो गया C6H5। इसके ऊपर तो क्या करेंगे, नो प्रॉब्लम। तब यहाँ में क्या लेंगे हम, C2H5, वी आर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, इतना लिख देना है, या फिर आप यहाँ से लिख के दिखा दीजिए। ठीक है, तो वुड्स में और वुड्स फिटिंग में क्या डिफरेंस है, तो वुड्स में क्या लेते हैं, सिर्फ एल्काइल हैलाइड 2 मोल्स लिया। ठीक है, वुड्स फिटिंग में एक एल्काइल लिया और एक एराइल लिया, तो भी हमारा फंडा वही करना है। क्लियर, तो इसके लिए कन्वर्जन के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन से इथाइल बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन से इथाइल बेंजीन, किसी एराइल हैलाइड से अगर हमको एल्काइल बेंजीन बनाना है तो हमें लेना पड़ेगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्लियर, चलिए थर्ड, फिर फिटिंग ने बोला नहीं, यहीं तक नहीं रुके, वो बोले नहीं हम दोनों एराइल लेंगे। तो व्हेन हेलो एरीन्स आर ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, डाइफिनाइल और बाइफिनाइल इज द मेजर प्रोडक्ट। तो उन्होंने कहा कि चलो अब पहला केस में हमने क्या लिया, दोनों एल्काइल लिया, फिर एक केस में क्या लिया, बोलिए एक केस में क्या लिया, एक एराइल और एक एल्काइल। अब इन फिटिंग यहीं तक नहीं रुके हो गए, अब हम दोनों एराइल लेके देखते हैं क्या बनता है। जो भी है हमारा फंडा तो वही है, इसको बोलते हैं डाई, डाई मतलब दो, फिनाइल, और बाई फिनाइल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कहेगा क्लोरोबेंजीन, सो कन्वर्जन बेंजाइल क्लोरोबेंजीन से देखिए हमारा फंडा वही रहेगा, Cl, ठीक है, सोडियम ड्राई ईथर,
निकाल दीजिए। तो चाहे फिटिंग हो, चाहे उड्स फिटिंग हो, चाहे सिंपली उड्स रिएक्शन हो, हमारा फंडा वही है। ये बन गया डाई फिनाइल और बाई फिनाइल। क्लियर। अब इसी मॉलिक्यूल में कहीं कहीं हमें CH3 लगा देता है, कुछ भी लगा देगा तो हम भी CH3, अब इसके नीचे CH3 लगाएगा तो हम भी CH3 लगा देंगे। ठीक है। तो जहां भी कन्वर्जन हमसे पूछता है क्लोरोबेंजीन से डाई फिनाइल वर्ड आएगा तो वह हमें फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, कन्वर्जन के लिए। नाउ सेम ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन उल्मान डाई एराइल सिंथेसिस भी इसको बोलते हैं, उल्मान रिएक्शन भी बोलते हैं, बट स्पेशली ये BSc वालों के लिए है। क्लास 12th में जनरली में इसको नहीं पढ़ते हैं। तो दिस इज ओनली फॉर BSc। CBSE में ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए कह सकते हैं। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन CBSE क्लास 12 सिलेबस। Now, when aryl iodide is heated with copper powder, मतलब इन्होंने क्या लिया, जिंक की जगह, सॉरी सोडियम की जगह पे क्या ले लिया, कॉपर पाउडर इन ए सील्ड ट्यूब एट 473 केल्विन, डाई एराइल कंपाउंड्स आर प्रोडक्ट, मतलब वही डाई फिनाइल बाइफिनाइल आयोडाइड के साथ। ठीक है भाई। एराइल क्लोराइड एंड एराइल ब्रोमाइड्स रिएक्ट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक NO2। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तभी एराइल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा। अब NO2 भी कहाँ आएगा, आर्थो और पैरा पे ही आएगा। ठीक है। एराइल फ्लोराइड्स डू नॉट गिव उल्मान रिएक्शन, तो फ्लोराइड जो होते हैं वो उल्मान रिएक्शन नहीं देते हैं। क्लोराइड और ब्रोमाइड कब देंगे, जिनकी कंडीशन है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप्स लाइक NO2 लगा, वो भी कहाँ में हो, आर्थो और पैरा में हो, तो ये इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। आयोडाइड आसानी से देगा, यहाँ में क्या है, कॉपर पाउडर। चलिए इसी रिएक्शन को देखिए, बट हमारा फंडा यहाँ भी कहेंगे कि ऑलमोस्ट सेम है। तो ये हमें दे देगा आयोडो बेंजीन। ठीक है, इसमें डाल दिया कॉपर पाउडर डाल देगा। हम वही काम जो काम फूड्स में किया था और फिटिंग में किया था, फिटिंग में किया था, वही हमें उल्मान में भी करना है। सील्ड ट्यूब लेते हैं, यहाँ पे सील्ड ट्यूब, इसको गर्म करते हैं 473 केल्विन पे। तो बस आंख बंद करके इसको यहाँ से निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। क्लियर। तो ये बन गया डाई फिनाइल या बाई फिनाइल, और यहाँ से 2CuI निकल गया। तो आयोडोबेंजीन से डाइफिनाइल बाइफिनाइल, तो भी वही काम करना है। बस अंतर है, उल्मान में क्या करना है, कॉपर पाउडर रहेगा, ठीक है, और फिटिंग में क्या था, सोडियम डाई ईथर। ठीक है। चलिए क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए कंडीशन ये है कि हमें NO2 चाहिए, जैसे ये ऐसे लिख देगा। अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये एल्किल हैलाइड है, मतलब एराइल हैलाइड्स है, और यहाँ में क्या लिखा है, कॉपर। कॉपर लिखा है तो क्या समझ में आया, अगर सोडियम होता तो फिटिंग रिएक्शन, कॉपर लिखा है तो उल्मान रिएक्शन, तो बना दीजिए। तो कंडीशन ये है कि क्लोराइड तभी देगा जब इसमें NO2 आएगा, वो भी किस पे, आर्थो पे या पैरा पे। तो नो डाउट ये आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो, इसलिए इसका नाम है आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, क्लोरो का C पहले आएगा, नाइट्रो का बाद में आएगा। तो ये क्या बनाएंगे, तो बीच में Cl से मैं सही लिखिए एक बार, और कॉपर डालिए, दोनों में से CuCl निकाल दीजिए, दोनों को एज इट इज जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दिया। तो यहाँ में Cl आया, कॉपर आया, Cl आया, जैसे भाई पीछे मैंने लिखा था कि अगर आयोडीन होता तो वहां भी वही काम किया था, बीच में कॉपर डाला था, आयोडो लिया था ना, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, दोनों को एज इट इज जोड़ दिया। यहाँ में डाइफिनाइल था, यहाँ में NO2 है, तो आर्थो आर्थो डैश डाई नाइट्रो डाइफिनाइल। ठीक है, इसको बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। चाहे उड जो हो, चाहे उड फिटिंग हो या उल्मान हो, ऑलमोस्ट हमारा कॉन्सेप्ट सेम ही है। बस अंतर है, उल्मान में क्या आएगा, कॉपर आएगा। ठीक है, फ्लोराइड तो देता ही नहीं है, तो बात ही खत्म। चलिए फोर्थ, एलिमिनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो देखिए जिस वर्ड के आगे डी वर्ड आता है इसका मतलब होता है रिमूवल। जैसे डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन। तो हमें यहाँ से दो चीज निकालना है, हाइड्रोजन और हैलोजन, इसलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एलिफेटिक हैलाइड्स एट लीस्ट 2 कार्बन एटम, जिसमें कम से कम 2 कार्बन एटम हो, एक वाले ये रिएक्शन नहीं देंगे।
Alkyl halides undergo dehydrogenation when heated with alcoholic KOH, alcoholic solution of KOH या सोडामाइड और NaNH2 to form alkene। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन। कब बनेगा? जब अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। ठीक है, देगा कौन? जिसमें कम से कम 2 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन हो। करना क्या है? तो द रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें 2 चीज निकालना है। डी हाइड्रो, डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब हैलोजन, फ्रॉम द अल्फा कार्बन एंड ए हाइड्रोजन एटम, मतलब हमें हाइड्रोजन निकालना है कहां से? बीटा कार्बन एटम। ठीक है, अब अल्फा बीटा क्या है? देखिए, इसको मैं जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिख दूं तो कम से कम हमें 2 कार्बन तो चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए हेलोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, बाकी यहाँ में क्या है, इसे इट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन है हमेशा उसके बगल वाला एडजेसेंट कार्बन, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। अब हम यहाँ से इसको निकालना है और इसको यहाँ से निकालना है। कब निकालना है? जब हमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या? अल्कोहलिक KOH गरम करो, या इसी को ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, या जब डाई जेमिनल डाई आते हैं तो NaNH2, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बोर्ड में हमें अल्कोहलिक KOH पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, तो देखिए इसकी एक वैलेंसी कम होगी, इसकी एक वैलेंसी कम होगी, तो ये दोनों क्या करेगा? डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा एल्कीन। जस्ट मार्कोनिकॉफ का उल्टा कह सकते हैं। अब जो हाइड्रोजन निकलेगी वो कहाँ जाएगी? OH के पास जाएगा तो वाटर बनाएगा। जो हाइड्रोजन निकलेगा ये माइनस है, पोटेशियम यहाँ में क्या है? प्लस है, तो ये क्या बनाएगा? पोटेशियम हैलाइड बनाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिएक्शन देगा कौन? जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो। सेकेंड, कब समझना है कि हमें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराना है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन निकालना है और हैलोजन निकालना है, जब अल्कोहलिक KOH आएगा तब। ठीक है, करना क्या है? देखिए इसका सीधा सीधा टिप्स ये है कि हमें क्या करना है? देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन है हमेशा उसके बगल वाले कार्बन, बगल मतलब एडजेसेंट, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, अगर 2 ऑप्शन है तो इसको हम बीटा 1 बीटा 2 कह सकते हैं। सेम कार्बन से हमें हाइड्रोजन नहीं निकालना है, हमेशा उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, इसलिए इसको 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, जिस कार्बन का हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, बस उसको डबल बॉन्ड कर दीजिए, खाना उसको खिलाएं जिसको भूख लगी हो। ठीक है, तो एल्कीन बनाना है डबल बॉन्ड, तो एल्कीन डबल बॉन्ड कहाँ से लगाएंगे? जिसका हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ठीक है, और जिसका हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, बाकी जो जैसे वैसे हमें लिख देना है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही रिएक्शन हमें आगे अल्कोहल में भी आएगा, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट एग्जांपल सबसे सिंपल, 2 कार्बन तो CH3 CH2 Cl, यहाँ में क्या लिख देगा? अल्कोहलिक KOH गरम। तो बोलिए अब इस कार्बन से क्या निकालेंगे? हैलोजन, तो हाइड्रोजन कौन देगा? ये वाला, तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इथीन बन गया, प्लस KCl बन जाएगा, प्लस वाटर। ठीक है, इथाइल क्लोराइड का हो या क्लोरोइथाइल का हो। चलिए थोड़ा और बड़ा करेगा तो हमको क्या देगा? CH3CH Cl CH3, सेम। तो ये हमारा फंडा क्या है कि जिस कार्बन पे हैलोजन है उसको पहले आइडेंटिफाई किया, अब उसके बगल में क्या है? ये भी है और ये भी है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। तो इसलिए अगर यहाँ से निकालेंगे तो बोलिए यहाँ में क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ में क्या आएगा? CH, क्योंकि जिसमें से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और जहाँ से हाइड्रोजन, बस उसको डबल बॉन्ड कर देना है। आप कहेंगे नहीं हम चलो यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल दिए भाई, तो ये क्या बनेगा? CH3 CH, और ये क्या बन जाएगा? CH2। इन दोनों में कोई अंतर है? दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोपीन, आप 1 भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है? प्रोपीन 1, मतलब अगर दोनों सेम है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम है 2 क्लोरो प्रोपेन या आइसोप्रोपाइल। ठीक है, चलिए थोड़ा और बड़ा करेगा तो हमें क्या लिख देगा? CH3, यहाँ में CH3 डाल देगा, यहाँ में चलिए ब्रोमीन डाल देगा, यहाँ में CH3 डाल देगा, जिसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अल्कोहलिक। ये ध्यान देना है,
इसके साथ हीट करना है। बोलिए क्या बनाएंगे? तो हमारा फंडा क्या है कि जिस कार्बन पे हैलोजन है हमेशा उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालना है, एडजेसेंट। तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है वो कहाँ गया? बोलिए जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है उसको निकालिए। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? तो यहाँ में हाइड्रोजन, इसको निकाल दिया। अब एक ऑप्शन है कि हम यहाँ से हाइड्रोजन हटा सकते हैं या एज यू विश यहाँ से हटा सकते हैं, दोनों सेम है ना, देखने में क्या है, ये भी CH3 ये भी CH3। क्या बनेगा? CH2। चलिए अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ में क्या आएगा? CH3, और यहाँ भी क्या आएगा? CH3। या आप कहें नहीं हम यहाँ से निकालेंगे, नो प्रॉब्लम। CH3, इसमें कोई चेंज नहीं, CH3 यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और यहाँ का हाइड्रोजन निकाला तो ये हो गया डबल बॉन्ड। 1 2 3 मतलब 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, 1, चलिए 1 भी लिख देते हैं, 1 2। यहाँ में क्या आएगा देखिए, 1 2, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। पीएच से कन्वर्जन। अब इसी में अगर हम HCl डालेंगे तो मार्कोनिक ऑफ, HBr डालेंगे तो मार्कोनिक ऑफ रूल। तो किसी एल्कीन से एल्कीन हैलाइड बनाना है तो हाइड्रोहैलोजिनेशन कह सकते हैं आप, HX के साथ रिएक्शन कराएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, और उसी एल्किल हैलाइड से वापस हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा? एल्कीन। ठीक है, the reactivity of alkyl halides towards dehydrohalogenation follows the sequence। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, 3 डिग्री हैलाइड्स, 2 डिग्री हैलाइड्स, 1 डिग्री हैलाइड्स। तो रिएक्टिविटी हमसे पूछेगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए। ठीक है, the reactivity of haloalkanes with different halogens, तो फिर से वही आ गई, आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड। ठीक है, तो डिफरेंट हैलोजेंस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आयोडाइड, एंड देन ब्रोमाइड सबसे कम होगा क्लोराइड इन कंपैरिजन टू आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड। ठीक है, चलिए नाउ सेट जॉफ रोल। इसकी जरूरत क्यों आ गई भाई? तो जस्ट सपोज एक हम यहाँ पे को ऐसे लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH यहाँ पे आ गया CH2 CH3। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ में एल्कोहलिक KOH लीजिए, इसको गर्म करिए, अब क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? बोलिए। तो हमने पीछे क्या बोला कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है उसमें से क्या करना है, हमें हाइड्रोजन निकालना है और हमेशा उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन। अब यहाँ से देखिए, ये बीटा 1 और बीटा 2 अगर माने, मतलब ये अल्फा हो गया तो ये बीटा 1 और ये बीटा इसके अगल बगल। तो आप कहेंगे कि यहाँ से CH3 निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से CH3 निकालेंगे तो क्या बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH, बाकी एज इट इज CH2 CH3। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे? कितने कार्बन है? 4, मतलब ब्यूट, डबल बॉन्ड है मतलब इन, काम है 1, ब्यूटीन 1। फिर कोई का नहीं भाई, हम CH3 से नहीं निकालेंगे, हमारा इच्छा है कि हम कहाँ से निकालें? CH2 से निकालें। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे तब क्या बनाएंगे? CH3, यहाँ में क्या आएगा? CH, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड, फिर CH और CH3। नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन है हमेशा उसके बगल, अब बगल में यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ भी CH3, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बनेगा, यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा। इसका नाम क्या लिखेंगे? बोलिए कितने कार्बन है? 4, मतलब ब्यूट, डबल बॉन्ड है मतलब इन, और काम में है 2, ब्यूटीन 2। अब विच वन इज मेजर प्रोडक्ट? क्योंकि इसके पहले हमने बनाया तो ऑलमोस्ट दोनों सेम था। ठीक है, अगर यहाँ CH3 होता तो यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले दोनों सेम था। अब इसमें यह है कि ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, उसी के लिए आया सेट ऑफ रूल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन में जहां में दो डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो उसमें हम मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल। जनरली दो रूल आता है, हाफमान रूल और सेट ऑफ रूल। तो फिलहाल हम यहाँ पे हाफमान नहीं पढ़ रहे हैं, सेट ऑफ रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो which states that according to Kirchhoff rule, the most substituted alkene is the major product. That is, hydrogen atom is preferentially eliminated from that beta carbon. उस कार्बन से निकालेंगे which has already lesser number of hydrogen atom. तो अगर आप ध्यान दें तो मार्कोनी काप में हमने क्या पढ़ा था, उस कार्बन पे ऐड करेंगे जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम। Kirchhoff रूल भी क्या कहता है कि अब निकालने की बात आएगी तो कहां से निकालेंगे, एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज ऑलरेडी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो अब इस किसमें कम है, यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, CH2 2 हाइड्रोजन है, यहाँ में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो कहाँ से निकालेंगे, विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ये हमने जो निकाला वो क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट, या इसी को कहीं कहीं लिखते हैं सेट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाले को क्या लिखेंगे, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस कार्बन से निकालना है जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, इसको बोलते हैं मेजर अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल। ठीक है, तो ये कब आएगा, जब हमें को दो डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इफ द हैलोकेन्स कंटेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन then reaction takes place या product formation takes place via Kirchhoff rule। तो ओरिएंटेशन कैसे निकालेंगे, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो उसको डिटरमाइन करेंगे Kirchhoff रूल से। ठीक है, क्लियर। अब अगर मान लीजिए आपसे ये पूछे, एक यहाँ पे एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल, अगर ये मान लीजिए हमें ये लिख के दिया है CH3 CHCl, यहाँ पे लगा दिया CH, यहाँ में CH CH3 CH3, या इसको मैं चेंज कर देता हूँ CH3, इसको हटा देता हूँ। और अब यहाँ से क्या है, एल्कोहलिक KOH क्या बनाएंगे। चलिए, इसका अगर हमें मान लीजिए प्रोडक्ट लिखना है तो क्या करेंगे, चलिए अब दो ऑप्शन है, एक कहाँ से निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ में क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे बाकी जैसे वैसे लिख दीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेजर क्या होगा, तो उस कार्बन से बीटा कार्बन से निकालेंगे जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो कहाँ में कम है, यहाँ में 1 है, यहाँ में 3 है, इसलिए ये वाला क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। इसका मेजर प्रोडक्ट हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, CH3 डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ में आ गया CH3 CH3। ठीक है, तो ये था सेट ऑफ रूल। तो निकालेंगे जहां में डिफरेंट है, दो डिफरेंट अगर बीटा हाइड्रोजन है तो हमें कहाँ में जाना है, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, अगर ये मान लीजिए हमें ऐसे लिख दे CH3, फिर यहाँ में डाल देगा CH3, यहाँ में डाल देगा Br, यहाँ में लिख देगा CH2, यहाँ में CH3, एल्कोहलिक KOH वगैरह, बोलिए। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, दो प्रोडक्ट बनेगा, एक कहाँ से बनेगा, यहाँ से निकाल दीजिए। तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ में क्या आएगा CH3, फिर CH2 CH3। दूसरा कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3 C CH3, यहाँ में आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया CH3। अब इसमें मेजर कौन होगा, तो Kirchhoff रूल। ये हमने टर्मिनल से निकालेंगे तो ये जनरली क्या होता है, माइनर होता है, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो उस कार्बन से निकालेंगे जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम। ठीक है, तो ये वाला क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये या Kirchhoff प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कुछ सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम है जो हमने आज केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा। तो ये प्रैक्टिस सेल्फ असेसमेंट कि आप रिएक्शंस को करके देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ओड स्प्लिटिंग फिटिंग डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन Kirchhoff रूल, तो उसके हिसाब से हमें ये प्रोडक्ट को लिखना है। ठीक है, चलिए
सेकेंड क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम मिथॉक्साइड इन इथेनॉल। सोडियम मिथॉक्साइड इन इथेनॉल दिया है, डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कराएंगे इन कंपाउंड्स का, तो क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा? तो वही अकॉर्डिंग टू सेट जॉफ रूल। ठीक है, तो सेट जॉफ रूल हमें देखना है। नाउ फॉर कन्वर्जेंस, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस? तो जो हमने आज वीडियो पढ़ा है उसी पे ये बेस्ट क्वेश्चंस। तो ये सब आपके लिए सेल्फ असेसमेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि आप देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ये था आज का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। रिएक्शंस को देखिए, क्वेश्चंस को करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1 SN2। ठीक है, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए